کے وزیر زراعت اور بیورو آف سپلائی سردار محمد بخش خان مہر کی صدارت سندھ سیڈ کونسل کا 36واں اہم اجلاس۔ سندھ کے زرعی سیکٹر میں ترقی، سندھ کے زرعی سائنسدانوں کا بڑا کارنامہ، زیادہ پیداوار دینے والی نئی زرعی اجناس ایجاد کر لی گئی اور سندھ حکومت نے کپاس، گندم، سرسوں، بیری کے 12 نئی زرعی اجناس کی منظوری دے دی ہے۔ اجلاس میں نئے بیجوں کی خصوصیات، نئی متعارف کردہ اقسام کی کاشت کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ خورشید رحمانی موجود ہیں۔ خورشید، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ دیکھیے، وزیر زراعت اور بیورو آف سپلائی سردار محمد خان بخش مہر کی صدارت میں سندھ کونسل کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ سندھ زرعی میدان میں بھی جو ہے آگے بڑھا ہے۔ سندھ کے زرعی سائنسدانوں کا بڑا کارنامہ سامنے آیا ہے کہ زیادہ پیداوار دینے والے نئے زرعی اجناس ایجاد کر لیے۔ سندھ حکومت نے کپاس، گندم، سرسوں، بیری کی 12 نئی زرعی اجناس کی جو ہے وہ منظوری دی ہے۔ اس اجلاس میں یہ نئی بیجوں کی خصوصیات، نئی متعارف کردہ اقسام کی شکایت کی منظوری دی گئی ہے، کاشت کی منظوری دی گئی۔ اس میں نئی زرعی اجناس میں کپاس کی قرض کی 644 قرض 674 قرض جو ہے وہ 682 نیا بیٹی 2021 اور نیا ریشم نان بیٹی کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ عروج 22، اکبر 19 اور سلحانی 21 اور نیا میک پاستا کی جزوی 1 سال کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ سرسوں کی کینولا بیری کی لیمیائی گولوں کی وزارت کی جو ہے وہ اجلاس منظوری، جبکہ پنجاب سے آئے چاول کی بیج کی وجہ سے سندھ کے کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ کاشتکاروں کے اجلاس میں شکایت کی ہے۔ اس میں وزیر زراعت محمد بخش مہر نے کاشتکاروں کی شکایت پر سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ محکمہ کو انکوائری کی ہدایت کی ہے، جبکہ محکمہ زراعت میں کافی بہتری بھی آئی ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر زراعت انہوں نے کہا کہ مگر کہیں نہ کہیں کمزوری ضرور ہے جسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کاشتکاروں کی مشاورت سے ہی نئی زرعی اجناس کی منظوری دی جائے گی۔ اس حوالے سے سندھ حکومت سیڈ ایکٹ پر کام کر رہی ہے، جبکہ ایکٹ کی منظور ہونے کے بعد دیگر صوبوں کی جعلی زرعی اجناس کمپنیوں کے خلاف سندھ کے افسران کارروائی کر سکیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا خورشید رحمانی۔ میئر کراچی کے ایم سی کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے ان ایکشن۔ انٹرسٹی بس ٹرمینل ٹرک سٹینڈ کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے گرینڈ آپریشن کا حکم۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد فیصل رضوی کے مطابق پہلے مرحلے میں ماڑی پور ٹرک سٹینڈ پر آپریشن ہوگا۔ شیری جناح بس ٹرمینل کو بھی قبضہ مافیا سے واگزار کرائیں گے۔ دوران آپریشن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی مدد لی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے شعیب مختار سے بات کریں گے۔ شعیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی زمینوں کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت تمام انٹرسٹی اور انٹرسٹی بس ٹرمینل، آئل ٹرمینل اور ٹرک اسٹینڈ کو قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے گرینڈ آپریشن کا حکم دے دیا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل محمد فیصل رضوی کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر آپریشن کیا جائے گا، جو کہ 100 ایکڑ پر محیط ہے۔ ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ کو آپریشنل کرنے سے متعلق جو ہے گڈ ٹرانسپورٹرز کی مختلف ایسوسیشن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ بعد ازاں شہری جناح کالونی بس ٹرمینل کو بھی قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے گا۔ آئل ٹرمینل ذوالفقار آباد کو بھی قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ٹرمینل محمد فیصل رضوی کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور محکمہ اینٹی انکروچمنٹ کی مدد بھی لی جائے گی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے بس ٹرمینل، آئل ٹرمینل پر اسکول، قبرستان اور اسپتال جو ہے وہ بن چکے ہیں، جبکہ متعدد جو بس ٹرمینلز ہیں ان پر قبضہ مافیا جو ہے وہ قابض ہیں۔ اگر بات کی جائے شہر کی تو کراچی کے ماتحت انٹرسٹی اور انٹرسٹی بس ٹرمینل، آئل ٹرمینل اور ٹرک اسٹینڈ کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے، جسے قبضہ مافیا سے واگزار کرانے کے لیے بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے نوٹس لے لیا ہے اور باقاعدہ طور پر ان کی جانب سے گرینڈ آپریشن کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ جی، آپریشن کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شعیب مختار آپ کا۔ اور اب بات کریں گے بجلی اور پانی بحران سے۔ کراچی والے پریشان، پنجاب کالونی میں عوام سراپا احتجاج۔ مائی کولاچی سے گزری اور پنجاب چورنگی تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ بوٹ بیسن، تین تلوار، اختر کالونی اور کالا پل کے اطراف بھی ٹریفک جام ہے۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے لیے سید نعمان گل کی رپورٹ۔
पंजाब कॉलोनी में पानी और बिजली की अदम फराहमी का एहतजाज बदतरीन ट्रैफिक जैम का बाइस बन गया। कयूमाबाद, अख्तर कॉलोनी, खलीकुज्जमा रोड, लीली ब्रिज, काला पुल, कैपिटी फ्लाईओवर, ब्रूक्स चौरंगी, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रोड, हर जगह गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिर और दफातर जाने वाले अफराद घंटों घंटों सड़कों पर फंसे रहे। तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया, गुदाम चौरंगी से यहाँ तक आधे घंटे में पहुँचे। कहाँ जाना है आपको? हमने डिफेंस जाना है, दो दरिया काम पे जाना है, लेकिन आगे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा जाने का। मैं लांडी से आ रहा हूँ, गुदाम चुरंगी तक गाड़ी पे आया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक पैदल पहुँचा हूँ। मैं कयूमाबाद वो क्या कहते हैं क्रॉसिंग से आ रही हूँ, काडियो जा रही हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ मैं। वो एज गाड़ी में बैठी हूँ, वहाँ पर से मैं पैदल आ रही हूँ, मलेरिया पूरा रोड में चलकर आ रही हूँ। जाम शादी के दोनों ट्रैक जाम हुए हैं और मुझे नहीं लगता और आगे तक ही जाम होगा। सेठ लोग जो है ना वो एतबार नहीं करते। अभी वीडियो बना के डाली है कि ये देखें कि हम कहाँ पर फंसे हैं। बलोच पूरा जाम पड़ा हुआ, वहाँ पे शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, वहाँ से सिटी स्कूल से सब कुछ जाम पड़ा हुआ है वहाँ पे। पंजाब कॉलोनी में बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज खत्म हो गया, ताहम ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल बहाल न हो सकी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात से फंसी गाड़ियों के बाइस रवानी थोड़ी सुस्त रवि का शिकार है। कैमरामैन राना झांजेब और साथी रिपोर्टर हम्माद के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। दूसरी जानिब 16 लाख से ज़्यादा नफूस पर मुश्तमिल मलीर जाफ़र तैयार सोसाइटी में पानी की किल्लत इंतहा को छू रही है। ज़ेर ज़मीन पानी का हुसूल सतह आब गिर जाने से नामुमकिन हो चुका है। दूसरी जानिब सफोरा हाइड्रेंट से सरकारी नर्ख पर पानी के टैंकर्स की फ्राहमी भी बंद हो गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, मलीर जाफर तैयार सोसाइटी से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। 16 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी इस वक्त बूंद बूंद पानी को तरस रही है। हाइड्रेंट से पानी मिलना भी शहरियों के लिए अजाब बना हुआ है। मकीनों का क्या कहना है, जानने की कोशिश करते हैं। बट साहब, आप मुझे बताइएगा पानी की सूरत हाल यहाँ पर क्या है? इलाके में मीठे पानी का आपने अभी खुद ही जिक्र कर दिया है कि यहाँ हम लोग मीठे पानी के लिए जो है वो बाजार से परचेज़ करते हैं। मैं तो खुद एक गरीब आदमी हूँ, तो पानी की कैन ही भरवा के और यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। जो यहाँ साहिब हैसियत लोग हैं वो टैंकर डलवा लेते हैं। टैंकर की सूरत हाल ये है कि जो सफूरा पे हाइड्रेंट था वो पहले सरकारी रेट पे मिल जाया करते थे, अब तो खैर वो भी नहीं मिलते। अब तो जिन लोगों के पास पैसा है वो सिर्फ वही हाइड्रेंट से रब्ता कर सकते हैं, बाकी हम लोग तो ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। दूसरा ये कि यहाँ हमारे यहाँ बोरिंग का पानी था, बोरिंग भी अब इस वक्त जो है वो काफ़ी नीचे जा चुकी है। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हो चुका है कि जो मेरा अपना पुराना ज़ाती घर था, अभी तो मैं इस वक्त यहाँ किराए पे रिहाइश पे हूँ, बोरिंग जो है वो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। अब इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि वो इस वक्त मुझे सही फिगर तो याद नहीं, लेकिन 700-800 फीट नीचे जा चुकी है। ये मुझे बताइएगा कि ये जो लाइनें बिछी हुई हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की, उसमें कुछ आपको मालूमात है कि उसमें पानी क्यों नहीं आता? जो नई लाइनें बिछी थी और हम खुश थे कि अच्छा यहाँ मीठा पानी आने वाला है, अभी तक तो पानी आया नहीं, लाइन तो बिछ चुकी है। इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि वो लाइनें जो हैं वो बिछ चुकी हैं, पानी अभी तक यहाँ पे आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है ये तो साहिब इख्तियारी बता सकते हैं कि पानी उसमें क्यों नहीं आता है। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि बूंद बूंद पानी को तरस रहा है मलीर जाफर तैयार का इलाका, और यहाँ पर जो पानी का इन्हिसार है वो ज़्यादातर आरओ प्लांट पे है, जहाँ से लोग केन की सूरत में पानी खरीदते हैं। और जो वाटर हाइड्रेंट है, सफूरा हाइड्रेंट बताया जा रहा है, वहाँ से सरकारी नरखों पर जो है यहाँ के मकीनों का कहना है कि उनको टैंकर नहीं मिल रहे हैं, उसके मुँह मांगे दाम वसूल किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ की गरीब आबादी के लिए पूरे करना मुमकिन नहीं है। शदीद किल्लत आब है, फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इस किल्लत आब को दूर किया जाए। जी आगे बढ़ेंगे, बुलेटिन में बात करेंगे ज़िला वस्ती में पानी की फ्राहमी बहाल। NE के ओल्ड सब स्टेशन की तकनीकी खराबी दूर कर दी गई है। तकनीकी खराबी के बायस NE के ओल्ड पंप हाउस और K2 फिल्टर प्लांट की बिजली मुनक़ता हो गई थी। तफसीलात के लिए एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, इस पर अपडेट कीजिएगा एहसन। लेकिन ये इलेक्ट्रिक की जानिब से NE के ओल्ड सब पंपिंग स्टेशन में जो है वो एक फनी खराबी हुई थी। केबल खराब होने के बायस जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई थी, जिससे 2 मकामात पर जो है वो बिजली मुनक़ता होने के बायस सप्लाई में जो है वो दुश्वारी का सामना हुआ। मुकम्मल तौर पे जो है वो सप्लाई को बंद करना पड़ा। K2 फिल्टर प्लांट और NE के ओल्ड पंपिंग हाउस जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद रहा है। परसों बताया जा रहा है कि परसों दोपहर को जो है वो 3:10 पर जो है वो अचानक केबल खराब होने के बायस जो है वो तमाम जो मशीनरी थी वो बंद हो गई थी, जिसके बाद के इलेक्ट्रिक के काम को जो है वो आगे किया गया। तो फौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पे काम का जो है वो आगाज किया गया, जिसमें से
कल 6:55 पर जो है वो बताया जा रहा है कि K2 फिल्टर प्लांट की बिजली को जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल कर दिया गया था ताकि वेस्ट के इलाकों में सप्लाई जो है वो बहाल हो सके, जबकि आज जो है वो NEK ओल्ड पंप हाउस की बिजली को जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल कर दिया गया है। अब K2 फिल्टर प्लांट और NEK ओल्ड पंपिंग हाउस से जो है वो तमाम सप्लाई जो है वो मामूल के मुताबिक हो गई है। तक जो जिला बस्ती में जो पानी का बहरान वक्ती तौर पे सामने आया था पंपिंग स्टेशन के बंद होने के बाद, अब वहां पर भी जिला बस्ती का तमाम जो पंपिंग स्टेशन हैं NEK फिल्टर प्लांट से जो है वो उनको सप्लाई शुरू कर दी गई है। मामूल के मुताबिक तमाम इलाकों में जो है वो पानी की सप्लाई जारी है। जी अच्छा एहसन, बताइएगा तकनीकी खराबी मुकम्मल तौर पर दूर हो गई है, दोबारा से मसला तो नहीं हो सकता? देखिए, टेक्निकल खराबी जो बताई जा रही है वो केबल के फॉल्ट के बाइस जो है वो पेश आई थी। केबल का फॉल्ट जो है वो हीट अप करने के बाइस जो है वो बस्ट कर गया था, जिसके बाइस जो है वो बिजली मुनक़ता हुई और वो तमाम ऑपरेशन जो है वो वक्ती तौर पे जो है वो मुकम्मल तौर पे रुक गया। तो केबल तब्दील करने के बाद जो है वो बिजली को बहाल किया गया। बहाल होने के बाद तमाम ओल्ड पंपिंग हाउस को जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली बहाल हुई, तो उसके बाद तमाम मशीनों को दोबारा से ऑन किया गया और सप्लाई का आगाज कर दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बासी। और दूसरी जानिब कराची वाले गैस के मामले पर दोहरी मुश्किलात का शिकार हैं। एक तरफ गैस की बंदिश है तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिलों ने जिंदगी अजीरन कर दी। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शहर कायद में जहां हम देखते हैं कि लोग गैस के लिए तो वैसे ही परेशान हैं, वो अब जो मामलात हमने पहले निशानदेही करते हैं वक्तन ये बात हम सामने लेके आते हैं कि लोग बिलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जहाँ बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं वहीं अब गैस के भी जो वार हैं वो रुक नहीं रहे हैं। लोगों को गैस जहाँ दिन के औकात हमने देखा कि अक्सर दिन में दोपहर के ख़ास करके 3 से 6 बजे भी लोड शेडिंग होती है, उसके बाद रात 10 बजे से शहर में गैस की बंदिश का सामना है। वहीं पे ज़ायद बिलों के लिए लोग जो है यहाँ मेगा सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। भाई हमारे साथ आए, वो यही परेशान हो रहे हैं, हर महीने इनको 9 से 10 हज़ार का बिल आ रहा है। आज ये क्या बात करने आए, उनको क्या कहा गया, ज़रा ये जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं SSGC वाले कि आपके यूनिट भी कम होने के बावजूद बिल ज़्यादा आता है, क्या कहना है? सर ये कह रहे हैं कि आपने 85 से 90 यूनिट इस्तेमाल करने हैं, उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपका बिल यही आएगा 10 से 12 हज़ार रुपये। तो सर हम कैसे आप बताएं कि हमने 85 या 90 यूनिट इस्तेमाल करें? ज़ाहिर बात है घर में तो इस्तेमाल ही होता है, 100 होता है, 110 होता है। और गैस की तो प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। गैस की प्रेशर इतनी है कि अगर चाय बनने के लिए रख देते हैं तो एक घंटे बाद चाय बनती है। ये देखें, हम बात करने के लिए किसी एक से बात करते हैं, यहाँ सब लोगों के अलग अलग मसाइल हैं। कोई कहता है कि हमें बोलते हैं कि 90 यूनिट इस्तेमाल करें तो आपका बिल कम आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि महंगाई के दौर में इस वक्त तक जहाँ हम इतनी निशानदेही कर चुके हैं, गैस के अंदर टैक्सेस हों, गैस के बिल हों, उसका टैरिफ हो, GST के नाम के ऊपर 3-3 हज़ार 1500 रुपये लगा के जो है वो भेजे जा रहे हैं। ये तमाम वो मसाइल हैं जिससे जो है आवाम परेशान होकर यहाँ कुरंगी के मेगा सेंटर पे आती है और अपने बिलों के लिए परेशान दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जी बात करेंगे करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया लांठी KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस उजड़ गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद वहां पर मौजूद हैं जो इसकी खस्ता हाली का मंजर दिखाएंगे। बताइएगा हमाद हमें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए KMC लांडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ का जो स्विमिंग पूल एरिया है वो इस वक्त जो है वो कीचड़ में डूबा हुआ है, गंदे और गलाजत में के इसके मनाजिर हैं। मैं आपको इस एरिया का पूरा जो है वो दिखाऊंगा। आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं कि इंतहाई बुरी हालत में ये स्विमिंग पूल हो रहा है। हमारे साथ एक यहाँ के स्पोर्ट्समैन मौजूद हैं इसी इलाके के, हम उनसे बात करते हैं। सर आप मुझे बताइएगा, आपने बताया कि आप खुद स्पोर्ट्समैन भी हैं, कहाँ जाते हैं यहाँ के बच्चे अगर ये ऐसी हालत है? कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट सब यहाँ पे टूट फूट का शिकार है। मशीनरी कई साल पहले आई, वो पड़े पड़े सड़ गई, तो कौन जिम्मेदार है? क्या समझते हैं कि कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि यहाँ पर आप हालत देख रहे हैं किस तरीके के हैं कि जिनके हाथ में चीज़ें हैं, KMC DMC जो भी मामलात हैं, ये इनको साफ सुथरा रखें। और यहाँ पर जो है ना, मैं तो कहता हूँ ये चीज़ आम कर दी जाए, जैसे पार्कों में लोगों ने आम किया हुआ ना, यहाँ पर ये चीज़ आम होनी चाहिए ताकि बच्चे यहाँ पर आएँ और देखें। आप खुद देखें यहाँ पर क्या हालत हुई हुई, यहाँ पर मच्छर फैलने और पलने यहाँ पर पैदा हो रहे हैं मच्छर गंदे, और यहाँ पे कौन लाएगा? मतलब जो भी यहाँ की इंतजामिया है उनसे मैं गुजारिश करता हूँ
कि वो यहाँ आएँ, सफाइयाँ करें, यहाँ देखें, आगे आके लोगों के लिए आम करें चीज़ें सारी, ताकि साफ़ सुथरा रहे, लोग यहाँ पर आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें। इर्द गिर्द घर है, कितने मच्छर अंदर जाते हो, काटते हो, कितनी बीमारियाँ फैलनी हैं, कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं। आपने देखे सुना, ये स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेटर भी हैं, ये कहते हैं कि इसको ही बेहतर अगर कर देते तो क्या बात थी, दूसरे बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे की जो इंतज़ाम है, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे अभी इनके दफ्तर पे ताला लगा हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, गायब हैं। पूरा साल ये बंद रहता है। कई साल पहले यहाँ पे मशीनरी लाई गई थी, लेकिन वो मशीनरी भी जो है अब पड़े सड़ चुकी है, गल चुकी है, उस पर जंग लग चुका है। एक सवालिया निशान है इन जिम्मेदारानों के लिए, जो कि यहाँ पर आकर ठंडे कमरों में बैठ के सिर्फ चाय की चुस्कियाँ लेते हैं और फिर उसके बाद शाम के वक्त दफ्तर को ताला लगा के घर चले जाते हैं। जी, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट जाग गया है। रेजिडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर और ऑडिट अफसरान को डायरेक्टर LFA का खत। लोकल कौंसिल मुलाजमीन को तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी अव्वलीन तरजीह पर रखने का हुक्म दिया गया है। ज्वाइनिंग से महरूम UC मुलाजमीन का एतराज़ बरकरार है। बोले शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद का हुक्म नहीं दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कराची की यूनियन कमेटियों में आए हुए तकरीबन 7 बरस गुजर चुके हैं, इस पर काम नहीं हो रहा है। उसके तहत हर यूनियन कमेटी में 5 जो पहले अहकाम थे 5 के, उसके बाद 8 मुलाजमीन रखने के अहकाम हैं। 7 बरस कबल जो शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जारी हुआ था उसके मुताबिक 8 मुलाजमीन हर UC में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, बेशतर मुंतखब नुमाइंदे जो है इन मुलाजमीन को चार्ज नहीं दे रहे हैं, जो कि ज्वाइनिंग लेटर लिए मारे फिर रहे हैं। इस चीज को जो हाईलाइट किया था सिटी 21 में, जिसके बाद जो है रेजिडेंट डायरेक्टर और ऑडिट अफसरान को डायरेक्टर LFA ने जो है वो खत लिखा है और तमाम कौंसल मुलाजमीन को तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी जो है वो फौरी तौर पर करने और इन मामलात को अवलीन तरजीह पर रखने पर का जो है वो हुक्म जारी किया है। लेकिन जो मुलाजमीन है जो कि ज्वाइनिंग से महरूम है, उनका दस्तूर बरकरार है। वो ये कहते हैं कि इस में रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को जो है वो एक्टिव होने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अमल दरामद के लिए जो है UC सेक्रेटरीज को और यूनियन कमेटीज के जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनको पाबंद करने का जो हुक्म देने का जो है वो अहकाम जारी किए जाएं। और इसके साथ साथ उनका ये भी मुतालबा है कि LFA को भी जो है रीजनल डायरेक्टर एक लेटर लिखें जिसमें इस चीज़ का पाबंद किया जाए कि शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर जो UC अमल दरामद नहीं कर रही हैं उनके जो तरक्याती बिल हैं उन पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। जी, फौरी पाबंदी आयद की जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। और अब आपको बताएंगे, स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास आज होगा, जबकि सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत जारी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, बताएंगे आजिज़ जमाली। जी हाँ, देखिए सिंध असम्बली का इजलास जो है आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत है। आज चूँकि प्राइवेट मेंबर्स डे है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई बिल या एजेंडा नहीं होता। अलबत्ता आज के एजेंडा में जो वक्फ़े सवालात है वो महकमे बल्दियात के बारे में है। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी मेंबरान के सवालात के जवाबात देंगे, जबकि कुछ करारदादें हैं आज की एजेंडा में। एक जो करारदाद है वो महकमे रिलीफ के बारे में है और बारिशों के बाद सिंध हुकूमत ने क्या रिलीफ फराहम किया है उसके बारे में है। जबकि एक करारदाद है मोहम्मद फारूक की, वो ख़त्म नबूवत के बारे में है और उस करारदाद में मुतालबा किया गया है कि ख़त्म नबूवत के बिल को कानून को 50 साल हो गए हैं, उस मौके पे आम छुट्टी का ऐलान किया जाए। एक करारदाद जो है के इलेक्ट्रिक के बारे में है, जो MQM PTI मुख्तलिफ करारदादें हैं। ये करारदाद है कि के इलेक्ट्रिक का जो लाइसेंस है वो ज़ब्त किया जाए, चूँकि के इलेक्ट्रिक जो है कराची के शहरियों को बिजली फराहम करने में नाकाम हो गई है। तो ये करारदाद हैं आज की एजेंडा में। कुछ तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं अरकान के, वो भी एजेंडा का हिस्सा हैं। जहाँ तक बात है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास है वो चेयरमैन PAC निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत अभी भी सिंध असम्बली की कमेटी रूम में जारी है।
ये इजलास आज जो हो रहा है ये मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग जामशोरों के हिसाबात के बारे में हो रहा है। इजलास में जो बात सामने आई, ऑडिट जनरल ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक साल 2017, 18, 19, 20, 21, 22 इन सालों में सिक्योरिटी पे पैसे खर्च किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी पर पैसे खर्च किए गए, उनके हिसाबात पेश नहीं किए गए थे। तकरीबन 16 करोड़ रुपए की ये बात थी जो बताया गया कि रेंजर्स और पुलिस की सिक्योरिटी पे खर्च हुए हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एतराज़ उठाया कि रेंजर्स और पुलिस को सिंध हुकूमत बजट फराहम करती है, तो यूनिवर्सिटी ने अपने अकाउंट से ये पैसे किस तरह दिए। तो इसको फैसला कोई नहीं हुआ और इस बात को डिफ़र किया गया इस शर्त के साथ कि आने वाले इजलास में यूनिवर्सिटी ऑफ मेहरान इंजीनियरिंग ऐसा कुछ सबूत पेश करेंगे कि ये फ़ैसला कहाँ पर हुआ है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी के हिसाबात पे ये इजलास अभी तक जारी है। जब इजलास ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा कि सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने किन मामलात पर फैसले किए हैं। जी अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि आप बता रहे थे अभी, और इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या कुछ और अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं? जी देखिए, सिंध असेंबली का आज का जो एजेंडा है वो प्राइवेट मेंबर्स डे है और तमाम मेंबरान जो यानी गवर्नमेंट का बिल और कानून साज नहीं होती आज के दिन पे, हफ्ते में एक दिन यानी ट्यूसडे का दिन ये मुकर्रर होता है प्राइवेट मेंबर्स के लिए, यानी आम मेंबरान कोई भी करारदाद, कोई भी तहरीक या कोई भी तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर सकते हैं। तो इसमें जो करारदादें आज के एजेंडा में शामिल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखना ये कि जब ये करारदादें पेश होंगी ऐवान में तो उसमें बहस होगी, फैसला क्या होता है वो सिंध असेंबली के ऐवान को करना है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि करारदादों की अगर हुकूमत की जानिब से मुखालफत की गई तो वो करारदादें मुस्तरद भी हो जाती हैं, मंजूर नहीं भी होती हैं। तो ये तो पता तब चलेगा जब करारदादें पेश होंगी। लेकिन आज जो वक्फ़े सवालात है वो काफ़ी अहम है, चूँकि महकमे बल्दियात के बारे में है और मुख्तलिफ मेंबरान ने सवाल पूछे हैं और उनके जवाब देने हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी को। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का होलसेल ग्रोसर्स की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। बोले, बगैर किसी दबाव के चेयरमैनशिप छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन से चेयरमैनशिप के लिए। मैं चेयरमैन का ओहदा छोड़ रहा हूँ और 10 तारीख को ये वैलिड है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि पूरी बाजार माशाल्लाह तमाम दुकानदार उन्होंने बड़ी मेरे को रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम इंपोर्टर, तमाम एक्सपोर्टर सब ने ताउन किया और जाहिर सी बात है कि मैं इस ताउन को और इस मोहब्बतों को भूल नहीं सकूंगा। मैंने अपना टेनोर अब पूरा कर लिया है, तकरीबन 2 महीने रह गए और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की जितनी मार्केट हैं उन्होंने मुझे सराहा, बहुत इज्जत दी। बात कर लेंगे सदर काटी जौहर अली कंधारी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने जून में इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था, जिस पर अमल ना हो सका। ये रिलीफ डिस्कोस को मिलेगा। कराची इसमें शामिल नहीं है कि इलेक्ट्रिक दीगर डिस्कोस से महंगी बिजली दे रहा है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। देखिए, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इंडस्ट्री को जो है 10.69 रिलीफ का फी यूनिट का ऐलान किया था, उस पर कब से अमल दरामद को, क्या कराची के सनअतकारों को ये रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, जानते हैं। काटी के सदर जौहर अली कंधारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है, कोई रिलीफ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। ये 10.69 रुपये का एक अनाउंसमेंट बड़ा हमने इसको अप्रिशिएट किया था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जून में गालमट शायद 14 जून को 21 जून को अनाउंस किया था। एक खुशी की लहर आई थी कि चले इंडस्ट्री को कुछ तो सहारा मिलेगा। लेकिन जो करंट इतलात हैं, जो हमें मालूम चल रहा है, उसके तहत ये कि पहले 10 रुपये होगा नहीं, शायद 6 रुपये होगा। और ये सिर्फ डिस्कोस के लिए है, तो इसका मतलब कराची इसमें वैसी फारिग हो गई है। या दूसरे डिस्कोस को भी जो 6 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कराची के अंदर मसला है, कराची को
3 से 4 रुपए ऑलरेडी फ्यूल एडजस्टमेंट की चार्जेस में हम, क्योंकि महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक से लेते हैं उसकी मद में दे रहे हैं, तो अगर उसको लेस करेंगे तो शायद हमारे पास 1.5-2 रुपये बचेंगे। तो अब ये वही चीज़ है कि हम मतलब जब मेरा ये कहना है कि जब आप टैरिफ आपका एक यूनिफॉर्म है तो फिर इस टाइप का जो इंसेंटिव है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। दूसरे डिस्कोस को 6 रुपये का बेनिफिट मिले और कराची को सिर्फ 2 रुपये का मिले, तो वही वो जो आप एक ज़माने से कहता आ रहा हूँ, जो डिस्क्रिमिनेशन कराची की इंडस्ट्री के साथ हो रही है, इन हालात में सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इलेक्ट्रिसिटी मेन सोर्स होती है आपकी इंडस्ट्री को चलने की।